Good morning, dear students. This is the fifth lecture on the chapter The Making of the National Movement 1870s to 1947. In a previous lecture, we had discussed about the Khilafat agitation and non-cooperation movement. Mahatma Gandhi launched the non-cooperation movement in 1920. And the Khilafat movement or agitation, it was started by the Muslim Ali brothers Shaukat Ali and Muhammad Ali. Why they launched? Because the Hars Treaty, which was imposed on the Turkish Sultan by British government. After that, we had discussed about the how people they participated in this movement, non-cooperation movement. From the people of all the sections of the society, they participated in that movement from their own interest, from the angle of their own interest. We had discussed. And we had also discussed that people started thinking Mahatma as a Masiha, or you can say God. That is why I show you the picture. Again, I am showing you the picture here. Mahatma Gandhi, he was driving the chariot of Lord Krishna, and by doing this, he was guiding all the other leaders of the Congress party. He was guiding all the leaders how to fight, how to struggle against the British government. Now we will discuss the happenings of 1920 to 29. What happened? In 1920, non-cooperation movement was launched. And as Mahatma Gandhi believed in non-violence, so the movement was going on the philosophy of Mahatma Gandhi. Non-violent way में ही लोग काम कर रहे थे. But what happened in 1922 in February, अब एक कुछ पेजेंट्स या फार्मर्स बहुत गुस्से में आ गए थे. और गुस्से में आके उन्होंने, उसके पीछे भी रीजन था. पहले पुलिस ने उनके ऊपर फायरिंग की थी, इससे बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, कुछ लोग उनडेड भी हो गए थे. इसलिए 1922 में एक क्राउड ऑफ पेजेंट्स दे सेट फायर टू अ पुलिस स्टेशन इन चौरी चौरा. चौरी चौरा कहाँ पे? चौरी चौरा यूपी में है. चौरी चौरा एक पुलिस स्टेशन में एक बहुत एंग्री पेजेंट्स के ग्रुप ने आग लगाए थे. इसलिए 10 पुलिसमैन बर्न अलाइव, जिसके लिए 10 पुलिसमैन की डेथ हो गई थी. मीन्स इट वाज अ टाइप ऑफ द एक्ट वाज अ वायलेंट एक्ट, और इस वायलेंट एक्ट के अगेंस्ट में महात्मा गांधी थे. महात्मा गांधी was believe in non-violence. Mahatma Gandhi believed in non-violence. So what Mahatma Gandhi, he was very hard. Mahatma Gandhi was very disappointed. He was very hurt, and due to after this incidents, he called off non-cooperation movement. Called off non-cooperation movement means उन्होंने non-cooperation movement को रोक दिया था. He called off non-cooperation movement immediately. After what? Immediately after the incidents of Chauri Chaura, where a crowd of peasants set fire to a police station and 10 policemen were burned alive. ठीक है. तो उसके बाद महात्मा गांधी को बहुत दुख हुआ. तो फिर महात्मा गांधी ने सोचा कि जो फॉलोअर्स थे, सत्याग्रही थे, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के फॉलोअर्स थे, दे वर नॉट रेडी फॉर अ मास मूवमेंट. क्योंकि अगर वो रेडी होते तो वो वायलेंट नहीं होते, वो नॉन वायलेंट वे में ही अपना काम कर सकते थे. सो एज महात्मा गांधी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, ही वॉज वेरी हार्ड. दैट इज वाई he thought the followers were not ready to launch a mass movement. इसलिए उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ किया था. उसके बाद जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हो गया, कॉल्ड ऑफ हो गया, उस टाइम जो कांग्रेस के और लीडर्स थे, सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, उन्होंने बोला अभी टाइम है कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें. काउंसिल इलेक्शन आ रहा है और काउंसिल इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट करेंगे. कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे और गवर्नमेंट में होते हुए गवर्नमेंट पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करेंगे. ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, अगर लेजिस्लेटिव में उनके इंडियन मेंबर्स होंगे तो ही गवर्नमेंट पॉलिसीज को वो इन्फ्लुएंस कर पाएंगे.
इसलिए CR दास मोतीलाल नेहरू ने बोला अभी हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये सोच रहे थे। उस टाइम महात्मा गांधी ने नेक्स्ट 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का लॉन्च किया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ था 1930 में। और इस टाइम और एक दो बहुत ही फेमस इंसिडेंट हुआ था, यू कैन सी, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था मिड 1920s में। टू ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड इन इंडिया। Two organization was formed in India, and among those two organization, one was RSS, राष्ट्रीय सेवक संघ, RSS का फॉर्मेशन हुआ था मिड 1920s में। एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ सुना था हमने? रशियन रेवोल्यूशन में, है ना। कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी में रशिया में कम्युनिस्ट पार्टी का फर्स्ट का फाउंडेशन हुआ था। उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन से हमारे जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, दे वर हाईली इंस्पायर्ड, इन्फ्लुएंस्ड बाय द रशियन रेवोल्यूशन। दैट इज व्हाई इन मिड 1920s द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड। और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि दोनों की आइडियोलॉजी, थिंकिंग बिल्कुल ही अलग था। और अभी अब ये इसके बाद भी बहुत सारे यंग रेवोल्यूशनरीज थे, जैसे कि भगत सिंह थे, देन राजगुरु सुखदेव थे, देन चंद्रशेखर आजाद थे। ये बहुत यंग ब्लड थे। ये मॉडरेट थिंकिंग में बिलीव नहीं करते थे, ये रेडिकल थिंकिंग में बिलीव करते हैं। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे रेडिकल थिंकिंग में, मीन्स जबरदस्ती हमें इंडिपेंडेंस लेना है, स्वराज लेना है, अब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में और नहीं रह सकते हैं। इसलिए द कांग्रेस रिजॉल्व टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और 1929 में जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में उन्होंने इकट्ठा हुए थे और 26 जनवरी 1930 में एज अ इंडिपेंडेंस डे सभी जो यंग मेंबर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने ओथ लिए थे, रेजोल्यूशन लिए थे कि 1930 को कि वी विल फाइट फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज के लिए अभी कांग्रेस के मेंबर्स काम करेंगे। मोस्टली इसमें जो रेडिकल्स मेंबर्स थे उन्होंने ही पार्टिसिपेट किया था। इसलिए उस डे को और भी मीनिंगफुल बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए, लोगों के याद में रहे वो दिन, इसलिए 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी एक्शन में लाए गए थे। That is why 26 January is celebrated as our Republic Day. 1930 में नहीं, 1950 में 26 जनवरी को और भी यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को हमारा our constitution came into effect. That is why we celebrate 26 January as a Republic Day. Now let me tell you one more story. इससे पहले ये दांडी, द मार्च टू दांडी या सॉल्ट मार्च, इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। जो आपको मैं बोल रही थी ना कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, इनके बारे में। all they were the young blood and they were radicals. उनके बहुत ज्यादा वो गुस्से में थे ब्रिटिश रूल, कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट में। दे आर अगेंस्ट देयर एक्सप्लॉयटेशन, जैसे कि वो पेजेंट्स को, वर्कर्स को एक्सप्लॉयट करते थे। एंड दे वर वेरी यंग, तो वो सोचते थे कि मॉडरेट की तरह हम इंडिपेंडेंस नहीं लेंगे ब्रिटिशर्स से, हम छीन के लेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया था, 1928 में एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया था। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया था। और उसके बाद 1928 में ही भगत सिंह आजाद एंड चंद्रशेखर आजाद एंड सुखदेव राजगुरु ने क्या किया था, सुंदर नाम का एक पुलिस
का एसेसिनेट कर दिया था, मर्डर किया था उन्होंने। क्यों? क्योंकि जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, उस टाइम जब कांग्रेस के मेंबर्स, लीडर्स स्ट्राइक पे जा रहे थे, देन मार्च कर रहे थे, रैलीज कर रहे थे, पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया था और उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। और जो पुलिस लीडर के अंडरशिप में वो लाठीचार्ज हुआ था, दैट वाज सुंदर। तो इसलिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एंड राजगुरु, बिकॉज लाला लाजपत राय ही वाज अ वेरी फेमस कांग्रेस लीडर और सभी उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। तो लाला लाजपत राय की डेथ के बाद वो लोग बहुत गुस्से में आ गए थे और जिस पुलिस ऑफिसर के लिए लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी, उनको उन्होंने मर्डर कर दिया। इसके बाद फिर 1929 में भगत सिंह ने क्या किया था? भगत सिंह और बीके दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका था। They threw a bomb in the Central Legislative Assembly. क्यों? उनको मारने के लिए एक्चुअली नहीं थे, कि जितना भी मेंबर्स थे उनको मारने के लिए नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को डराने के लिए। वो सोचते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट डर जाए और कंट्री छोड़ के भाग जाए। अल्टीमेटली क्या हुआ था? भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु पकड़े गए थे एंड 1931 में उनकी फांसी हो गई थी। तीनों की फांसी हो गई थी। जब फांसी हुई थी तब भगत सिंह की एज ओनली 23 इयर्स था। ओके, सो आवर फ्रीडम, जो अब हम इंडिपेंडेंस, वी आर एंजॉयिंग द इंडिपेंडेंट इंडिया, तो इस इंडिपेंडेंस को लाने में बहुत सारे लोगों की बहुत सारे लोग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, बहुत अपने लाइफ देके हमें ये इंडिपेंडेंस देके गए हैं। So this was the story of Bhagat Singh. Now let us come to the topic, the March to Dandi. March to Dandi means 1930 में महात्मा गांधी ने फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का लॉन्च किया था। अब इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था? पहले आपको मैंने बोला था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मीन्स नॉट टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिशर्स। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब है कि अब लॉ ब्रेक करना है इन अ नॉन वायलेंट वे। गांधी जी ये बिलीव करते हैं, पहले तो ब्रिटिशर्स के साथ हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, सेकेंड थिंग जितने भी लॉज है वो अब हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए न्यूसेंस क्रिएट करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ये सॉल्ट लॉ, गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को क्यों ब्रेक किया था? बहुत सारे और भी तो लॉज थे, सॉल्ट लेक को गांधी जी ने क्यों चुना था? क्यों? इसके पीछे भी एक स्टोरी है। उस टाइम क्या होता था, अभी जैसे मार्केट में आपको पैकेट में सॉल्ट मिल जाता है, वैसे तो नहीं होता था। उस टाइम जो सी वाटर, ओशन वाटर को बॉईल करके फिर सॉल्ट बनाया जाता था, क्योंकि ओशन वाटर और सी वाटर में बहुत सारा सॉल्ट डिजोल्व होके रहते हैं। उसको जब आप बॉईल करोगे वाटर इवापोरेट हो जाते हैं और नीचे सॉल्ट रह जाता है। तो आप सोचो, ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, इंडिया पेनिनसुलर इंडिया के तीनों तरफ से सी से बाउंडेड है। अरेबियन सी वेस्ट में है, साउथ में इंडियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। उसी सी या ओशन में से पानी निकल के बॉयल करके वो सॉल्ट बनाते थे ब्रिटिशर्स, और उसी सॉल्ट को इंडियंस को हाई प्राइस में खरीदना पड़ता था। एंड नॉट ओनली दैट, कोई भी इंडियंस उस सॉल्ट को नहीं बना सकता था। जो भी कोस्टल एरियाज में भी रहते थे, दे वर नॉट अलाउड टू मेक द सॉइल। अब इंडियन और सॉल्ट क्या है, दे वर नॉट अलाउड टू मेक द सॉल्ट। और अब सॉल्ट क्या है, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिच, पुअर, क्लास, क्रीड, रिलीजन, सॉल्ट सबको चाहिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको सॉल्ट चाहिए। ये तो लग्जरी आइटम तो नहीं है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो इंडियंस को बहुत गुस्सा आया। इंडियंस ने सोचा कि हमारे सी में से पानी उठा के सॉल्ट बनाते हैं और हमें ही हाई प्राइस में ब्रिटिशर्स बेचते हैं और हमें ही अलाउ नहीं करते हैं सॉल्ट बनाने के लिए। इसलिए गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को
टारगेट करके सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए डिसीजन लिया। अब सॉल्ट लॉ गांधी जी ने कैसे ब्रेक किया था? तो गांधी जी का जो आश्रम था, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद गुजरात में, तो गांधी जी ने क्या किया, साबरमती आश्रम से अपने फॉलोअर्स को लेके, नियर अबाउट बहुत सारे फॉलोअर्स को लेके वो साबरमती आश्रम से पैदल चलने लगे और चलते चलते गुजरात का ही एक और कोस्टल सिटी या टाउन आप बोल सकते हो, जैसे कि उसका नाम है दांडी। तो नियर अबाउट 240 माइल्स वो 10 दिन तक वो फॉलोअर्स के साथ गांधी जी चलते थे। 24 माइल्स चल के फिर रेस्ट लेते थे, फिर चलते थे, ऐसे चल चल के पैदल चल के 240 माइल्स along with the followers गांधी जी दांडी में पहुंचे। दांडी में पहुंच के उन्होंने सी में से पानी उठाया, बॉयल किया और सॉल्ट बना के सेरेमोनियली ही ब्रोक द सॉल्ट लॉ। तो सॉल्ट लॉ ब्रोक करके गांधी जी ब्रिटिशर्स को एक सबक सिखाना चाहते थे। दैट इज व्हाई ही लॉन्च्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने सॉल्ट लॉ को पहले टारगेट किया था। लेट अस सी व्हाट इज रिटन हियर। In 1930, Gandhi ji started march to break the salt law. Gandhi ji and his followers marched from Sabarmati Ashram in Ahmedabad to the coastal town of Dandi in Surat, where they broke the salt law. I told you how they broke the salt law. The combined struggles of Indian peoples bore fruit when the Government of India Act 1935 prescribed. तो इसके लिए सिविल डिसोबीडियंस के बाद 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द इंडिया एक्ट ऑफ 1935 को पास किया था, जिसके तहत प्रोविंशियल ऑटोनॉमी या एंड द गवर्नमेंट अनाउंस इलेक्शन टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इन 1937। 1937 में फिर दोबारा इलेक्शन के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था और इंडिया को एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का एक रेस्पेक्ट भी मिला था। उसके बाद 1939 में फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो कांग्रेस लीडर्स इस बार भी ब्रिटेन को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करने के लिए राजी हो गए थे। they agreed to support the British government in the Second World War। लेकिन इस बार उन्होंने एक कंडीशन भी रखा था। कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स ने भी, कांग्रेस लीडर्स ने कंडीशन रखा था। उन्होंने क्या कंडीशन रखा था कि जब वॉर खत्म हो जाएगा तो ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के चले जाएंगे, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू कंसीड द डिमांड एंड द कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइंड इन द पोस्ट। अब ये डिमांड ब्रिटिशर्स ने नहीं माना, इसलिए जितने भी काउंसिल में, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में जितने भी कांग्रेस के मिनिस्टर्स थे, मेंबर्स थे, उन्होंने इसके प्रोटेस्ट में the Britishers did not want to give independence, they did not want to leave the country। इसके अगेंस्ट में, प्रोटेस्ट में जितने भी कांग्रेस के मिनिस्टर्स थे लेजिस्लेटिव, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में, उन्होंने रिजाइन किया था। So it was what? The Dandi March. I think it is clear to you. Thank you and have a good day.